Assalamu alaikum to everyone. In previous lecture we completed the introduction of transition metals and we tried to differentiate between D block elements and transition metals. Again I will repeat that statement. All transition elements are D block elements, but all D block elements are not transition elements, जैसे कि हमने define किया. Now अब जो दूसरा पोर्शन है इस चैप्टर का, दैट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स. ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज हमें एक्सप्लेन करनी है इन डिटेल. इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, वी मेक फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज एज अ रेफरेंस. जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स है उनकी प्रॉपर्टीज इंडिविजुअली हमें अलग अलग से नहीं पढ़नी है. वी हैव टू गो थ्रू जनरल स्टडी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट प्रॉपर्टीज. In order to understand the properties, we make first transition series or 3D series as a reference. तो 3D सीरीज को रेफरेंस लेके हम सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं. ठीक, तो उस बेसिस पे हमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का एक तो नाम पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए. दैट वी हैव डन इन द फर्स्ट लेक्चर. इन दिस लेक्चर वी विल जस्ट नो द नेम ऑफ second and third transition elements along with their atomic numbers. electronic configuration आप खुद कर सकते हो. प्रॉपर्टीज तो हमें थर्ड ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज तो हमें 3D सीरीज से ही पढ़नी है, 3D सीरीज से एक्सप्लेन करना है, लेकिन वी शुड नो द नेम्स एंड एटॉमिक नंबर्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ अदर टू सीरीज ऑल्सो. So I will start with the first transition series again, 3D series और first transition series. 3D series में जैसे कि आपको पता है 10 elements है, starting from scandium to zinc. I will write the names, symbols of all the elements. First scandium, then titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc. Atomic number 21 and up to atomic number 30. This is first transition series. चले. Now second transition series, that is 4D series. 4D series खाली elements का नाम हम लेंगे along with the atomic numbers. It starts with the first element called as deuterium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silver, and last element is cadmium. Again I repeat the names of elements of the second transition series: deuterium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silver and cadmium. First element, that's deuterium, its atomic number is 39. Then continuing up to 40, 41, 42, 43. Up to last element it's 48, cadmium. Continuously atomic number goes on increasing. And the third transition series, जिसको हम नाम देंगे 5D series. As far as 5D series is considered, the elements start from lanthanum. रिमेंबर मैंने आपसे कहा था लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स की गैप आ जाती है और उन 14 एलिमेंट्स को हम कहते हैं लेंथेनॉइड्स. यानी 57 अगर इसका एटॉमिक नंबर है, 58 to 71 सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स आता है जिनको हम नाम देते हैं लेंथेनॉइड्स.
उनको एक्सक्लूड करके जो दूसरा एलिमेंट इसमें आ जाएगा, इट्स नेम इज हाफनियम and that will be atomic number 72. First element is lanthanum, atomic number 57. Then 58 up to 71, there is a series of 14 elements that are named as lanthanoids. तो उनको हम एक्सक्लूड कर लेंगे यहाँ से. So second element is hafnium, then tantalum, tungsten, rhenium, osmium, iridium, platinum, gold and mercury. Mercury is atomic number 80. These are the elements of third transition series or 5D series. Again I repeat the elements: lanthanum 57, 58 to 71 gap of 14 elements called as lanthanides. Second element is hafnium, then tantalum, tungsten, rhenium, osmium, iridium, platinum, gold and mercury. So this is this first transition series, second transition series, third transition series, 3D series, 4D series and 5D series. आगे बढ़ने से पहले कुछ एलिमेंट्स इसमें अहमियत रखते हैं, जैसे टेक्नीशियम. This is the first synthetic element. It is the first synthetic element. Technetium is the first synthetic element. Tungsten, as you know, it is the metal with highest melting point. It is the metal with highest melting point. इसका melting point metals में सबसे ज़्यादा है. Then again, the next element, osmium. Osmium is the metal or element with highest density. It's the metal or element in the periodic table with maximum density. And one more point, these three elements, that's elements of group number 11. Group 11, तो group 12 होगा, that's copper, silver and gold. These elements are named as coinage elements because they were used in the formation of coins. They're named as coinage elements. ठीक है, तो first transition series के atomic numbers, name of the elements and their electronic configuration आपको already पता है, you know it, but at least we should know the names and the atomic numbers of the elements that belong to second transition series and third transition series. ठीक है, now हमारा जो अब टॉपिक है, that is general characteristics of transition elements explained on the basis of first transition series. तो first transition series की electronic configuration हम use करके explain कर लेंगे the properties of transition elements. चलिए, तो properties explain करने के लिए कुछ basics हमें पता होनी चाहिए that we are going to use in explaining the properties of transition elements. जो पहला basic point है, basic property है जो हमें use होगा to explain the properties of transition elements. Since they are metals, metals में एक special type of bonding होती है जिसको हम नाम देते हैं metallic bonding. Metallic bonding आगे हमें use करना होगा. So first of all, we should have the insight of metallic bonding that occurs in the metals. Metallic bonding क्या है और ये किन factors पे depend करता है, and what will be the effects of metallic bonding on the properties of overall metals, in particular here transition metals. चलिए, अगर हम एक मेटालिक क्रिस्टल लेंगे
Let me take the metallic crystal जहां पे एटम्स क्लोजली पैक्ड है। ये मान ले एक एटम, ये दूसरा एटम, ये क्लोजली पैक्ड एटम्स है। दिस इज मेटालिक क्रिस्टल। यहां से दूसरा एटम, तीसरा एटम, क्लोजली पैक्ड मेटल्स। मान लें ये एक क्रिस्टल है, मेटालिक क्रिस्टल, जहां पे एटम्स दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, टाइटली पैक्ड। You may have gone through the solid state. Now this is the reference of metallic crystal. Now we know that metals are electropositive. As you know, metals have the tendency to lose one or more electrons. Let me represent this as metal M. It has the tendency to lose one or more electrons. It gives M plus N times electrons. For alkali metals, this N is equal to 1 because they have got only one valence electron. For alkaline earth metals, this N is equal to 2 because they have two valence electrons, and so on. Okay. So metals in generally have tendency to lose electrons. That's why we call them as electropositive. Similarly, जब metal atom metallic crystal में होते हैं, they will lose the electrons. They have the tendency to lose electrons and they will lose electrons. The electrons lose करेंगे, तो जो ही electrons lose करेंगे, they are converted into ionic form. As a result of that, metal atom will acquire positive charge. अब ये पॉजिटिव चार्ज कितना होगा वो डिपेंड करेगा द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलर थिंग हैपेंस इन अ मेटालिक क्रिस्टल। मेटल एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन्स, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे आर कन्वर्टेड टू पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इनमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, तो इनमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। दिस मेटल एटम विथआउट इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दिस मेटल आयन इन अ मेटालिक क्रिस्टल विथआउट इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिनको आगे हम डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कहेंगे, इसको हम नाम देते हैं कर्नल। Metal atom without its valence electrons is called as kernel. In metallic crystal, these electrons do not go outside the crystal. ये crystal से बाहर नहीं जाते हैं. They remain in the crystal. There, in voids, electrons are there. ये electrons, यहाँ पे electrons. And these electrons are free to move in the entire crystal. They are free to move in the entire crystal. As a result, in electrons को हम कहेंगे free or delocalized electrons. Free or delocalized electrons. These electrons, since they are free to move in the entire crystal, they are called as free or delocalized electrons. ठीक है? Now, metal atom अब electrons lose कर चुका है. Metal atom without its valence electrons, without its delocalized electrons is called as kernel. It's positively charged. And there will be free or delocalized electron which move in the entire crystal. ठीक है? तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है because of the kernel, and electrons की वजह से नेगेटिव चार्ज भी होगा. That's there. अब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज होगा बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स and the negative charge of these free or delocalized electrons. तो इनमें एक force of attraction arise होगा between positively charged kernels and free or delocalized electrons. This force of attraction is called as metallic bond, या इसको हम metallic bonding कहेंगे. So metallic bonding actually है क्या? It's a force of attraction that arises between the kernel and these free or delocalized electrons. This force of attraction will be called as a metallic bonding. So bond, obviously that you know it is the force of attraction. Again, अगर फिर से एक बार हम इसको समझने की कोशिश करेंगे,
ये मेटालिक क्रिस्टल है। मेटालिक क्रिस्टल में सिंस मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दे हैव द टेंडेंसी टू लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, इस प्रोसेस से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। दिस मेटल एटम विदाउट इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और जिनको हम डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन भी बाद में कहेंगे, इसको हम कहेंगे कर्नल, एंड दिस कर्नल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। देन देयर विल बी n number of electrons in this entire crystal. ठीक है, for sodium the number of kernels and the number of electrons will be same. For magnesium it will be twice, and so on. There will be n number of electrons. Now a force of attraction will arise between positively charged kernel and these free or delocalized electrons. This type of bonding is called as metallic bonding. So metallic bonding is the force of attraction, is the force of attraction that arises, is a force of attraction that arises between positively charged kernels, between positively charged kernels and delocalized electrons. This force of attraction is called as metallic bond, or you can say metallic bonding. तो ये है metallic bonding. ठीक, now next point हमारा होगा what are the factors that affect metallic bonding. मेटालिक बॉन्डिंग को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं और किस तरीके से इफेक्ट करेंगे. सिंस इट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक साइड से तो पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे साइड से नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, तो आप आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हो कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं मेटालिक बॉन्डिंग को. सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस. फैक्टर्स दैट इफेक्ट मेटालिक बॉन्डिंग. Factors affecting metallic bonding. ठीक, now you can understand it easily. First point, it is size of kernel. Now you know what is kernel. Size of kernel, obvious बात है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. जितना कर्नल का साइज छोटा होगा, या मैं सिंपली कहूंगा जितना मेटल एटम का साइज छोटा होगा, ऑब्वियसली कर्नल उतना छोटा बनेगा और उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये अप्लाई करेगा ऑन फ्री और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, दैट मींस मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. तो जितना कर्नल का साइज छोटा होगा, स्मॉलर द साइज ऑफ कर्नल, मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग. ठीक, छोटे साइज का कर्नल ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा इन कंपैरिजन टू लार्जर साइज कर्नल. तो अगर कर्नल का साइज छोटा होगा, देन मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. तो इस बेसिस पे हम सिंपली कहेंगे मेटालिक बॉन्डिंग is inversely proportional to size of kernel or kernel या size of simply metal atom. कर्नल का साइज छोटा, मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा. सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द मेटालिक बॉन्डिंग, दैट साइज ऑफ कर्नल. स्मॉलर द साइज ऑफ कर्नल, मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग. सेकेंड, effective nuclear charge, Z effective of kernel. Obviously क्लास 11th में आप पढ़ चुके होंगे effective nuclear charge. Effective nuclear charge is nuclear charge minus screening. I will not go into that. Effective nuclear charge is simply the force of attraction that arises from the kernel. जिस कर्नल का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा,
उसका अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, और ऑब्वियसली जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इसका मतलब है उसको कम टेंडेंसी होगी टू अट्रैक्ट दीज फ्री और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. सो आई विल से मेटालिक बॉन्डिंग is directly proportional to Z effective, that's effective nuclear charge of kernel. जितना कर्नल का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, उतनी मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. ठीक है. नाउ आगे जाने से पहले जो पहला वाला पॉइंट है, दैट साइज ऑफ कर्नल, ये हमें यूज होगा इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बट एज फार एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज कंसिडर्ड, वी हैव टू मेनली यूज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द कर्नल. पॉइंट 3, number of valence electrons, number of valence electrons या number of free or delocalized electrons. obvious बात है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मेटल लूज करेगा, उतनी ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अराइज होगी, बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज. एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर गोइंग ऑब्वियसली टू इंक्रीज. ठीक है. अगर मेटल एटम को एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखोगे तो वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल अराइज देयर. इफ यू टेक n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n फोर्सेस विल अराइज. तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल एटम में होंगे, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और उतनी मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. सो आई विल से मेटालिक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ delocalized free और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. जिस मेटल में जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिस मेटल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री या डीलोकलाइज हो जाएंगे, उसमें उतना स्ट्रेंथ मेटालिक बॉन्डिंग का ज्यादा होगा. सो एज अ रिजल्ट वी से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इज गोइंग टू इफेक्ट द मेटालिक बॉन्डिंग. सो मेटालिक बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दीजिए, फ्री डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दीजिए, मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. ठीक है. इसमें एक और पॉइंट है जो मैं ऐड यहां पे करना चाहता हूं. इफ वी गो टू द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जाएंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप 1 में 1 और ग्रुप 2 में 2. सो वी हैव 1 और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ग्रुप 1 यानी एल्कली मेटल्स में खाली एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. इस वजह से वहां पे फ्री या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर या तो 1 होगा या तो 2 होगा. Now, in case of transition metals में NS के अलावा N-1d इलेक्ट्रॉन्स भी मेटालिक बॉन्डिंग में आ जाता है. That's very important. In case of transition metals में जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, ट्रांजिशन मेटल्स का नोबल गैस कोर के बाहर हमने लिखा था N-1d 1 to 10 एंड NS 0 to 2. ये कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी थी. इन एडिशन टू NS electrons, in addition to these electrons, ये d electrons भी मेटालिक बॉन्डिंग में आ जाते हैं. तो यहां से ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही है, लेकिन इनमें जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है. They are very close in energy. As a result of that, इन इलेक्ट्रॉन्स के अलावा N-1d इलेक्ट्रॉन्स भी मेटालिक बॉन्डिंग में आ जाते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होगा. जब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होगा तो मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी. दिस इज फर्स्ट पॉइंट. So in case of d block elements, valence electrons in d block elements
in D block is greater than valence electrons in S block. As a result we say कि D block में जो strength of metallic bonding होती है वो बहुत ज़्यादा है in comparison to S block elements. This is the first point. And number second, D block elements में जितने unpaired electrons का नंबर बढ़ता जाएगा उतने electrons के metallic bonding में आने के chances भी बढ़ेंगे, और जितना unpaired electrons का नंबर कम हो जाएगा, as the number of unpaired electrons will drop, the number of electrons that can enter into the metallic bonding will also decrease. तो उस वजह से metallic bonding की intensity decrease होगी. So we can say metallic bonding, especially in transition elements, not in S block elements, metallic bonding in transition elements में जो metallic bonding है that's directly proportional to number of unpaired electrons. जितने unpaired electrons का नंबर ज्यादा होता जाएगा उतने electrons के metallic bonding में आने के chances ज्यादा, और जितने metallic bonding में आने के chances ज्यादा होगा उतना force of attraction ज्यादा strong बनेगा, and that will increase the metallic bonding. So these are the simple factors, बिल्कुल आसान तरीका समझने का. These are the factors that are affecting the metallic bonding. ठीक. So first is the size of kernel. Metal atom जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल एटम्स आर कॉल्ड एज कर्नल्स. जितना कर्नल का साइज कम होगा उतनी मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. दिस इज द फर्स्ट फैक्टर. सेकेंड, इट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द कर्नल. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑब्वियसली मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट विल अराइज फ्रॉम द कर्नल. जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कर्नल का ज्यादा होगा उतना ऑब्वियसली अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. एंड थर्ड, इट्स द नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड फ्री और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, वट एवर नेम यू गिव टू देम, जितना इनका नंबर ज्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा. इस पॉइंट के बेसिस पे वेरी इंपॉर्टेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में या तो एक इलेक्ट्रॉन या तो दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ सकते हैं मेटालिक बॉन्डिंग में, बिकॉज दे गॉट ओनली वन और टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. बट इन ट्रांजिशन मेटल्स, in addition to ns electrons, n-1d electrons are also involved in metallic bonding. As a result, electrons का नंबर ज्यादा. इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होने का मतलब मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा. तो ऑब्वियसली ट्रांजिशन मेटल्स में मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ एस ब्लॉक के कंपैरिजन में ज्यादा है, बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ वैलेंस और फ्री और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. एंड लास्ट पॉइंट, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा बढ़ेगा उतने इलेक्ट्रॉन्स का मेटालिक बॉन्डिंग में आने के चांसेस ज्यादा है. So we can say metallic bonding also depends upon the number of unpaired electrons. Unpaired electrons जितने ज्यादा बनते जाएंगे metallic bonding की strength कम, as you pair up the electrons. Then metallic bonding में electrons के आने के chances थोड़े कम हो जाएंगे. As a result, metallic bonding strength will decrease with increase in the pairing of electrons. So this was concept of metallic bonding, and second, the factors affecting metallic bonding. Third point जो metallic bonding का है, metallic bonding metals में कौन कौन सी properties को affect करता है. metals के जो सारे properties है that can be easily explained on the basis of metallic bonding, but here we will take only few properties that we have to use in transition elements. First, the properties that are affected by metallic bonding, उनमें जो पहला dominant property है, that's melting and boiling point of metals. Melting and boiling point of metals. किसी भी मेटल का melting या boiling point डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितने मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी
उतना मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा. सो मेटल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. एंड सेकेंड पॉइंट, enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization. किसी भी मेटल को एटमाइज करने के लिए, फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस स्टेट कंप्लीटली डिसोसिएट करने के लिए, the energy that you required for 1 mole, that's enthalpy of atomization, that also depends upon the strength of metallic bonding. तो जिस मेटल में मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसमें ऑब्वियसली एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन भी ज्यादा होगा. ठीक है, तो यही दो प्रॉपर्टीज सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे ट्रांजिशन मेटल्स, और उनकी एक्सप्लेनेशन बेस्ड होगी ऑन द मेटालिक बॉन्डिंग. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स. जब भी कोई प्रॉपर्टी हम ट्रांजिशन मेटल की एक्सप्लेन करेंगे, हमें 3 पॉइंट्स के बेसिस पे एक्सप्लेन करना होगा. फर्स्ट, इन कंपैरिजन टू एस ब्लॉक. अगर हम एस ब्लॉक मेटल्स के साथ कंपेयर करेंगे तो प्रॉपर्टी का वैल्यू ज्यादा होगा कि कम होगा. सेकेंड, we have to compare that property down the group, yani first transition series to second, second to third, 3D to 4D to 5D series. And third important point, within a transition series, as we move from left to right within a transition series, what will be the variation, what will be the change of that property. ठीक है, तो first of all we will start with melting and boiling point of transition metals. Melting and boiling point. Melting and boiling point of transition metals. पहला comparison as far as melting and boiling point is concerned. अब आप आराम से समझ सकते हो, एस ब्लॉक के कंपैरिजन में ट्रांजिशन मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होंगे कि कम होंगे, और वो डिपेंड करेगा मेटालिक बॉन्डिंग के स्ट्रेंथ पे. अभी हम डिस्कस यही कर रहे थे, ट्रांजिशन मेटल्स में मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा है बिकॉज ऑफ 2 factors, small size of kernel and more number of free or delocalized electrons. So first point I am going to write, metallic bonding in transition elements. Metallic bonding in transition elements is greater than S block elements. S block elements. Because 2 factors responsible हैं. पहला, small size of kernel. First, small size of kernel. कर्नल का साइज छोटा है, ऑब्वियस आप आराम से समझ सकते हो. यहाँ S ब्लॉक है, यहाँ D ब्लॉक है. व्हेन यू मूव अक्रॉस द पीरियड द साइज विल डिक्रीज. तो कर्नल का साइज छोटा है, जितना कर्नल का साइज छोटा होगा उतनी मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. सेकेंड फैक्टर इज मोर नंबर ऑफ valence or delocalized electrons. More number of valence or delocalized electrons. 2 factors हमने लिए.
एस ब्लॉक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 1 और 2, लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स में NS के अलावा N-1d इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में आ जाते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग में आ जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा होगा। इन दो फैक्टर्स के बेसिस पे हम कहेंगे मेटालिक बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आप मेल्टिंग पॉइंट आराम से कंपेयर कर सकते हो। ट्रांजिशन मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। रीजन इज देयर। सो फर्स्ट पॉइंट आई एम राइटिंग देयर कंपैरिजन। मेल्टिंग and boiling point of transition metals greater than S block elements. ठीक, क्यों है ज्यादा? रीजन है कि इनमें मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ट्रांजिशन मेटल्स में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। दैट्स व्हाई वी से मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज ग्रेटर देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। दिस इज पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट, डाउन द ग्रुप ट्रांजिशन मेटल्स में जब आप जाओगे, दैट इज 3D सीरीज टू 4D, 4D टू 5D सीरीज। एज यू मूव डाउन द ग्रुप from first transition series to second and second to third transition series, what will happen to the melting and boiling points? Transition elements में down the group effective nuclear charge बढ़ता है। Effective nuclear charge increases down the group because D और F इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग पावर बहुत कम होता है because of their diffused shape। इस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, और जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इट मीन्स मेटालिक बॉन्डिंग विल इंक्रीज। जब मेटालिक बॉन्डिंग ऑब्वियसली इंक्रीज होगा तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ट्रांजिशन मेटल्स के इंक्रीज होंगे। सो आई विल से melting down the group melting and boiling point of transition metals increase due to increase in effective nuclear charge। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से क्या होगा? मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जब मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ेगी इसका मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज होगा। दैट मीन्स 5D सीरीज या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट 4D सीरीज से ज्यादा और 4D सीरीज का 3D सीरीज से ज्यादा। सो ऑर्डर जो बनेगा दैट विल बी 5D सीरीज ग्रेटर देन 4D सीरीज ग्रेटर देन 3D सीरीज। ये ऑर्डर है melting or boiling point का in case of transition metals when you move from first transition to third transition series। इसको हम बाद में ग्राफिकली भी दिखाएंगे। फिलहाल तीसरे पॉइंट पे आते हैं। As far as third point is considered, in a particular transition series, what will happen to the melting and boiling points? एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के साथ क्या होगा, इस चीज को मैं ग्राफिकली दिखाना चाहता हूं। इफ आई प्लॉट ग्राफ बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स विथ एटॉमिक नंबर, दिस इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और यहां से हम प्लॉट करेंगे एटॉमिक नंबर दैट इज Z। और जब आप ग्राफ देखोगे हमें ग्राफ जनरली कुछ इस तरीके से मिल रहा है, ऐसे। किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में ये ग्राफ बिल्कुल इस जैसा होगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट एटॉमिक नंबर विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस। इस ग्राफ से आप आराम से अंडरस्टैंड कर रहे हो। फर्स्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स विल इंक्रीज एंड विल रीच टू द मैक्सिमम, then it will decrease।
ठीक है, इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे। सिमिलरली सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में भी कुछ ऐसा ही होता है। पहले मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज हो गए, फिर डिक्रीज हो जाता है। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी टाइप का ग्राफ आपको मिलेगा। So when you plot melting and boiling point of transition metals with atomic number, this type of graph आपको मिलेगा। In general, इन points को छोड़ दीजिए, इन dips जो मैंने दिखाए, इसको बाद में explain कर लेंगे। In general, जो graph है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। First, melting and boiling points increase, reach to the maximum that it decrease। अब इस चीज को कैसे explain कर लेंगे? Already मैंने metallic bonding में इस point का जिक्र जो किया था। Melting and boiling points depends upon metallic bonding, and metallic bonding depends also on the number of unpaired electrons. जब आप पहली ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जाओगे, you will get first D1 configuration, D2 configuration, D3 configuration, D4, D5, D6 and so on up to D10. Look at the first. The number of d electrons is continuously increased. d electrons का नंबर बढ़ रहा है, but what is different? First, the number of unpaired electrons increase up to d5. इसमें एक unpaired electron, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5. First, the number of unpaired electrons is increasing. ठीक है, और इसके बाद unpaired electrons का नंबर डिक्रीज हो रहा है। Although the number of d electrons is continuously increasing, but the number of unpaired electrons first increase then decrease. इसका मतलब ये है, पहले melting और boiling points इस वजह से बढ़ रहे हैं because number of unpaired electrons is increasing, because जितने unpaired electrons ज्यादा हो गए उतना उन unpaired electrons का metallic bonding में आना ज्यादा होगा। उस वजह से मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा, मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होने का मतलब ये है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गए। ठीक है, सो फर्स्ट melting and boiling point increase because of increase in the number of unpaired electrons, and then after the half of series, after the mid of series, melting and boiling points decrease due to decrease in the number of unpaired electrons, not due to decrease in the number of d electrons. d में continuously electron add होते जा रहे हैं, लेकिन unpaired electrons का नंबर पहले बढ़ेगा फिर decrease हो जाएगा। So within a transition series, first melting and boiling points increase due to increase in the number of unpaired electrons, then it decreases due to decrease in the number of unpaired electrons. So तीसरा point हमारा ये होगा, in a transition series, in a transition series, in a transition series, melting and boiling points, melting and boiling points first increase, वजह due to increase in number of unpaired electrons, due to increase in the number of unpaired electrons. ठीक, अनपेयर इलेक्ट्रॉन से मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ेंगे। देन फ्रॉम द मिड ऑफ सीरीज के बिल्कुल हाफ के बाद, फ्रॉम द मिड ऑफ सीरीज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज, melting and boiling points decrease. क्यों decrease हो रहे? Due to decrease in the number of unpaired electrons, due to decrease in number of unpaired electrons. This is variation of melting and boiling points in any particular transition series. तीनों की तीनों transition series मैंने यहाँ पे दिखाई।
This is first transition series, 3D series, this is 4D series and this is 5D series. ठीक है, तो ये था वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन ट्रांजिशन मेटल्स. 3 पॉइंट्स. एस ब्लॉक के कंपैरिजन में ट्रांजिशन मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा. वजह, ट्रांजिशन मेटल्स में मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा है. वो क्यों है वो आपको पता है. सेकेंड, in a particular transition series, जब आप पहले देखोगे फर्स्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज. वजह, due to increase in the number of unpaired electrons. After the mid of series, half of series के बाद melting और boiling points decrease होते हैं due to decrease in the number of unpaired electrons. और तीसरा, down the group, if you move from 3D series to 4D series, 4D series to 5D series, उस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स विल इंक्रीज. ठीक है. नाउ ये जो डिप्स है कर्व में, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस. यहां पे दिस इज स्कैंडियम, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम. ये है क्रोमियम टॉप पे, फिर मैग्नीज, फिर आयरन और लास्ट पे जिंक. और यहां पे मोलिब्डेनम. और ये होगा, ये जो डिप है, दिस डिप इज टेक्नीशियम. सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में है. और ये सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, पहले ही मैंने जिक्र किया था इस एलिमेंट का. दिस इज टंगस्टन. टंगस्टन से पहले इफ यू गो द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, लैंथेनम, हाफनियम, टेंटलम. यहां से जो एलिमेंट आ जाएगा उसका नाम है टेंटलम. टेंटलम, टंगस्टन. और यहां से जो तीसरा एलिमेंट आ जाएगा दैट्स रीनियम. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, मैग्नीज के मेल्टिंग पॉइंट में डिप क्यों? इसको हम 2 तरीके से एक्सप्लेन करेंगे. देयर आर 2 explanations for this. As you look at the manganese, there is dip in the melting point. The melting point order should have been manganese greater than iron, but it is, ये तो होना चाहिए था, but it is iron greater than manganese. Now इसका रीजन क्या है? मैग्नीज की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगे, दैट्स आर्गॉन 3d5 4s2. As far as manganese is considered, मैग्नीज में जो डी कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, D5 है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल है. तो इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से it will not allow its d electrons to enter in metallic bonding. Because of stable half filled configuration, manganese knot will allow its d electrons to enter in metallic bonding. ये d electrons को metallic bonding में allow नहीं करेगा. जब d electrons metallic bonding में नहीं आ जाएंगे, उस वजह से number of electrons in metallic bonding कम हो जाएगा, metallic bonding की strength कम हो जाएगी, जिसकी वजह से melting point में dip है. And similar explanation is for technetium. This again D5. और दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है, मैग्नीज का जो क्रिस्टल है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल क्रिस्टल स्ट्रक्चर. जो नॉर्मल मेटल्स का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, इट इज डिविएटेड फ्रॉम द नॉर्मल मेटालिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो लैटिस एनर्जी एक क्रिस्टल में होनी चाहिए, जो स्टेबिलिटी एक क्रिस्टल में होनी चाहिए, वो नहीं है, जिसकी वजह से मैग्नीज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है. सो 2 रीजंस रिस्पॉन्सिबल है. फर्स्ट इज D5 कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. एंड नंबर सेकेंड इज deviation from ideal crystal structure. Ideal crystal structure.
जो उसका आइडियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज डिविएटेड फ्रॉम द नॉर्मल आइडियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से जो क्रिस्टल का जो लैटिस एंथैल्पी होगा, लैटिस एनर्जी होगा, तो जो क्रिस्टल की स्टेबिलिटी होगी वो डिक्रीज हो जाती है। उसकी वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीज में होना चाहिए वो मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीज में नहीं है। दैट्स डिविएशन फ्रॉम दिस। और सेकेंड पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, ग्रुप 12 एलिमेंट्स। As far as group 12 elements is considered, that is zinc, cadmium and mercury. Zinc, cadmium and mercury. इनका melting point order. As far as mercury is considered, mercury तो liquid state में है, obviously इसका melting point तो सबसे कम होगा, इस वजह से मैंने थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को यहाँ लाया। जिंक और कैडमियम में जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट्स डिसाइडेड बाय द साइज। जिंक का साइज छोटा है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ओवरकम कर लेता है। जिंक का साइज छोटा है, छोटा कर्नल साइज का मतलब है मेटेलिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कैडमियम और मर्करी से ज्यादा होगा। तो इन तीन का जो मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर होगा दैट इज जिंक ग्रेटर देन कैडमियम ग्रेटर देन मर्करी। ठीक है, सो दिस इज मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्करी। सो ठीक, दिस वाज ऑल अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट। 3 पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन किया। एट लास्ट आई विल गिव एन इंफॉर्मेशन, वो जनरल इंफॉर्मेशन है, नॉट नेसेसरी टू मेमोराइज दैट, बट जनरल जो ट्रेंड्स है वो आपने देख ली और उसकी एक्सप्लेनेशन भी हमने दी। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स टोटल 30 है। फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज को मिला के टोटल ट्रांजिशन मेटल्स 30 है। इन 30 में से 10 एलिमेंट्स ऐसे है, सॉरी, इन 30 में से 20 एलिमेंट्स ऐसे है जिनका मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर देन 1000 डिग्री सेल्सियस। This is for general information, not necessary to memorize, but you must know it. Out of 30 elements, 20 elements ऐसे हैं जिनका melting point 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, और उन 20 में से 10 elements ऐसे हैं जिनका melting point 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, ग्रेटर दैन 2000 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और उन 10 में से 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट 3000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस शोज स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल्स। इस ब्लॉक के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम होते हैं, लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट आप देख लीजिए, 30 में से 20, खाली 10 का 1000 से कम है, 20 एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट 1000 से ज्यादा, और उन 20 में से 10 ऐसे जिनका मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, और उन 10 में से 3 एलिमेंट्स, 3 मेटल्स ऐसे हैं जिनका 3000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, और इन 3 में सबसे टॉप पे टंगस्टन, देन रेनियम, देन टेंटलम। These are the 3 elements जिनका मेल्टिंग पॉइंट 3000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, और टॉप पे टंगस्टन, इट्स नियरली 3400 डिग्री सेल्सियस, 3400 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। दिस वाज ऑल अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स विथ रेफरेंस टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी पे हम आते हैं, दैट्स एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। वो भी बिल्कुल इसी पॉइंट से एक्सप्लेन होगा। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, एकदम से एक्सप्लेन होगा। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन अगेन डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग। ये मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। जितनी मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतना एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ज्यादा होगा। ठीक है, सो आई विल राइट
ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है. ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई delta H atomization, enthalpy of atomization, that is ब्रैकेट्स में लिख लेता हूं मैं डेल्टा H एटोमाइजेशन. इनका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है. एटोमाइजेशन अगर कोई एलिमेंट A होगा, इट्स टू बी कन्वर्टेड इनटू A गैस. इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा, दैट्स एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. इसको गैसेस स्टेट में कंप्लीटली अलग अलग एटम्स को करना है, गैसेस स्टेट में लेना है, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी, दैट्स एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. वो डिपेंड करेगा ऑब्वियसली द स्टेबिलिटी ऑफ मेटालिक क्रिस्टल, द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग इन मेटालिक क्रिस्टल, दैट्स ऑब्वियसली मेटालिक बॉन्डिंग. तो इस वजह से इनका मेटालिक जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा है. रीज़न इज सिंपल है, हाई strength of metallic bonding. और metallic bonding की strength ज़्यादा क्यों है वो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. This is the second general characteristic of transition elements. Again, going to the another point, transition elements have high enthalpy of atomization. ये है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. क्यों है ज़्यादा? क्योंकि इनमें स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है. और क्यों स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है, उसके दो रीजंस है. एक तो कर्नल साइज इनका कम है जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, और नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इनमें ज़्यादा होता है. दिस इज हाउ यू एक्सप्लेन द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. अगली प्रॉपर्टी जो हम इनमें एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज एटॉमिक एंड आयनिक साइज. ट्रांजिशन मेटल्स का एटॉमिक एंड आयनिक साइज with reference to 3D series, very important characteristic. Atomic and ionic size. Atomic and ionic size of transition elements with reference to 3D series. अगेन 3 पॉइंट्स की बेसिस पे हम इस कैरेक्टरिस्टिक, इस प्रॉपर्टी को बढ़ेंगे. फर्स्ट, इन कंपैरिजन टू एस ब्लॉक. सेकंड, डाउन द ग्रुप 3D to 4D, 4D to 5D, what will happen to the size. And third will be within a transition series, what's happening to the size. पहला पॉइंट, जब आप एस ब्लॉक और ट्रांजिशन मेटल्स को कंपेयर कर लोगे, एंड यू विल कंपेयर द एटॉमिक साइज ऑफ दीज एलिमेंट्स, एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक, एस ब्लॉक टू डी ब्लॉक, सॉरी, या एस ब्लॉक टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूअसली बढ़ेगा. ये तो ऑलरेडी आपको पता है. अक्रॉस द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो साइज हो जाएगा, साइज विल डिक्रीज. एज अ रिजल्ट वी कैन से ट्रांजिशन मेटल्स का जो साइज है वो एस ब्लॉक की कंपैरिजन में कम होगा, जो ऑलरेडी भी डिस्कस किया हमने. ट्रांजिशन मेटल्स have smaller size in comparison to S block elements. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, or transition metals is less than or S block.
that's metallic radius. This first point. Second point, very important, as you move down the group, 3D series to 4D series, 4D series to 5D series, डाउन द ग्रुप जब आप जाओगे, व्हाट विल हैपन टू द एटॉमिक साइज? जनरल ट्रेंड जो पीरियोडिक टेबल में है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज increases due to increase in the principal quantum number or increase in the number of shells. ठीक है? Now, if I write first few elements of 3D series, scandium, titanium, vanadium and chromium. 4D सीरीज के कुछ एलिमेंट्स हम लिखेंगे, हीटेरियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम. 5D सीरीज के कुछ एलिमेंट्स हम लिखने वाले हैं. 5D सीरीज में लैंथेनम, हाफनियम, टेंटलम एंड टंगस्टन. चलिए, we know that down the group atomic size increases. Obvious सी बात है, because of increase in the number of shells. So यहाँ पे भी जब आप जाओगे, scandium to yttrium size should increase and it increases. ठीक, no problem. Yttrium to lanthanum size should increase and it increases, no problem. ठीक है. Now, titanium to zirconium size should increase, it increases, no problem. Vanadium to niobium size should increase, it increases, no problem. Chromium to molybdenum size should increase and it increases, no problem. अभी कोई problem नहीं हमें आ रही है. ठीक. Then, now listen this carefully. Zirconium to hafnium size should increase because shell number increase हो रहा है. Size should increase but it remains same. यहाँ problem आ रही है. जिरकोनियम टू हाफनियम साइज बढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है? साइज इज नियरली सेम, लगभग सेम है. सिमिलरली नियोबियम टू टेंटलम साइज शुड इंक्रीज, सेम. इन दो का भी सेम. फिर आगे से जितने भी आप देखोगे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, 4D और 5D सीरीज, इनका साइज सेम है. सो वी कैन से इन जनरल साइज इंक्रीजेस from 3D to 4D series. 3D series to 4D series साइज बढ़ रहा है, नो प्रॉब्लम, तो बढ़ना ही चाहे तो बढ़ रहा है. बट लेकिन ठीक है, बट साइज ऑफ 4D series is nearly similar to the size of 5D series. This is important. 4D series और 5D series यानी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का 4D सीरीज और 5D सीरीज का जो साइज है वो बिल्कुल एक जैसा है. क्वेश्चन अराइजेस व्हाई? ऐसा क्यों? इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट रीजन है जो आपने सुना भी होगा. द रीजन बिहाइंड दिस इज अ वेल नोन फिनोमिनन कॉल्ड एज lengthenoid contraction. Lengthenoid contraction. Lengthenoid contraction. ये lengthenoid contraction क्या है, ये डिटेल में इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लेंगे इनसाइट. देखिए, यहां पे मैंने आपसे कहा स्कैंडियम टू यूटेरियम टू लैंथेनम साइज रेगुलरली इंक्रीजेस, साइज बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन इसके बाद इनका साइज सेम, इनका साइज सेम, इनका साइज सेम. रीजन इज दैट लैंथेनम और हाफनियम के बीच में 14 एलिमेंट्स की सीरीज आती है, जिन एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं लैंथेनॉइड्स. जिन एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं लैंथेनॉइड्स, ठीक है. There's a series of 14 elements called as lanthanoids. Lanthanoids में 4f इलेक्ट्रॉन पुअरली स्क्रीन करते हैं.
रीजंस आगे कल इंशाल्लाह आगे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। वो पुअरली स्क्रीन करते हैं, उनका स्क्रीनिंग पावर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर शेल को अपनी ओर खींचेगा, देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन इन द साइज एंड दैट कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहां से यहां तक जो 14 एलिमेंट्स है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइज होता है, जिसको हमने नाम दिया लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब जितना यहां से यहां बढ़ना चाहिए था, उतना यहां से यहां डिक्रीज हो रहा है। As a result of that, इन दो एलिमेंट्स और आगे ये सेम है, जितने भी एलिमेंट्स आ जाएंगे इनका साइज लगभग सेम होता है। एंड दिस सिमिलैरिटी इन द साइज बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और 4D एंड 5D सीरीज अराइज बिकॉज ऑफ द स्पेशल फिनोमिनन एंड दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सेकेंड यानी 4D सीरीज और थर्ड यानी 5D सीरीज, इन दो ट्रांजिशन सीरीज का जो साइज है वो बिल्कुल एक जैसा है। रीजन रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, बट यहां पे साइज रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। रीजन बिल्कुल सिंपल है, लैंथेनॉइड्स लैंथेनम के बाद आते हैं, लैंथेनम से पहले नहीं आते हैं। तो स्कैंडियम टू यूटेरियम, यूटेरियम टू लैंथेनम, साइज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजेस। इस ट्रायो को छोड़ के बाकी 4D और 5D सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका साइज लगभग सेम होता है। द फिनोमिनन कॉल्ड एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स विल हैव सिमिलर साइज। ठीक है, and remember that will the pair of elements belonging to 4D series and 5D series. This is variation of size down the group, और ये वेरिएशन ऑफ साइज आगे आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करने वाला है, जो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ लेंगे। सो दिस वाज द सेकंड वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू द एटॉमिक एंड द आयनिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पहला, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का साइज एस ब्लॉक के कंपैरिजन में कम है, ऑब्वियस सी बात है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से साइज कम होगा। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि डाउन द ग्रुप साइज शुड इंक्रीज एंड इट्स इन पीरियोडिक टेबल साइज कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, बट the size of second and third transition series is same because of the some special phenomenon that occurs. That phenomenon is called as lengthenoid contraction. इसकी वजह से इनका साइज बिल्कुल एक जैसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें एटॉमिक और आयनिक साइज में डिस्कस करना होगा, दैट इज वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन अ पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज। एक ट्रांजिशन सीरीज में साइज वेरिएशन किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर लेंगे और किस तरीके से होगा, इसको मैं ग्राफिकली दिखाता हूं। आई विल प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन साइज एंड एटॉमिक नंबर, जैसे कि हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स में डिस्कस किया था। दिस इज एटॉमिक साइज और यहां से एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, जब आप प्लॉट करोगे आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा, लगभग कुछ इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। इस टाइप का ग्राफ किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में यू विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ दैट्स रिप्रेजेंटेड देयर। ठीक है, this is scandium to manganese, then iron, cobalt, nickel, then copper and finally zinc. ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का साइज वेरिएशन है, कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको मिल रहा है। लुकिंग एट दिस ग्राफ, जो हमें इस ग्राफ से व्हाट वी इन्फर फ्रॉम द ग्राफ,
what we are getting from the graph? It looks that first atomic size continuously decreases from scandium to manganese. Atomic size continuously कम हो रहा है up to manganese. मैंगनीज के बाद आयरन, कोबाल्ट और निकल, दे नियरली हैव सिमिलर साइज. थोड़ा डिक्रीजिंग ट्रेंड है, लगभग साइज सेम है. एंड एट द एंड इन कॉपर एंड जिंक इट्स साइज अगेन इंक्रीजेस. अब इस ग्राफ को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? दिस ग्राफ कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय 3 फैक्टर्स. फर्स्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. सेकेंड, सिग्मा, जिसको हम स्क्रीनिंग भी कहते हैं, मे बी अपनी क्लास 11th में पढ़ा होगा. एंड थर्ड, इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस. 3 points which are going to explain the size variation of any transition series. ठीक है, 3 फैक्टर. सबसे पहले हम देखेंगे इंडिविजुअली इन फैक्टर्स का साइज पे क्या इफेक्ट होने वाला है. फर्स्ट ऑफ ऑल, गो टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूअसली बढ़ेगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूअसली बढ़ने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट विल इंक्रीज. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट साइज विल डिक्रीज. सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो साइज होगा दैट विल गेट डिक्रीज्ड. सेकेंड, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट. Screening or shielding arises because of electronic repulsions and it opposes nuclear charge. जहां पे सिग्मा ज्यादा होगा, क्योंकि ये अपोज कर रहा है न्यूक्लियर चार्ज को, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल ड्रॉप, अट्रैक्शन विल डिक्रीज. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट साइज इज गोइंग टू इंक्रीज. तो अगर सिग्मा बढ़ रहा है, सिग्मा इंक्रीज हो रहा है, स्क्रीनिंग इंक्रीज हो रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है दैट विल ड्रॉप. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट साइज इज गोइंग टू इंक्रीज. Third factor that comes into existence nearly at the end of series, because of increase in the number of pairs of electron. जब number of electron pairs बढ़ेंगे, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएंगे. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर विल बी एक्सपेंशन ऑफ द साइज. सो ये वाला फैक्टर भी साइज को बढ़ा रहा है. लेकिन ये वाला फैक्टर एग्जिस्टेंस में, डोमिनेटिंग पोजीशन में खाली एट द एंड ऑफ सीरीज आ जाएगा. क्यों आ जाएगा एट द एंड ऑफ सीरीज? द रीजन इज दैट एट द एंड ऑफ सीरीज वी विल हैव नियरली 5 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ D10 कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, अब चलिए हम एक्सप्लेन करने वाले हैं. पहला फैक्टर साइज को डिक्रीज करेगा और दूसरा फैक्टर साइज को बढ़ाएगा. ठीक है, तो मेनली ये 2 फैक्टर्स हमें यूज करने हैं टू एक्सप्लेन द साइज वेरिएशन इन एनी पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज. ना अब मुझे बताइए, जो पहला वाला पार्ट है इसमें साइज कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, साइज इज कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीजिंग. तो साइज डिक्रीज इस वजह से होगा कि पहले वाले पार्ट में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डोमिनेंट ओवर सिग्मा. पहले वाले पार्ट में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग को डोमिनेट करेगा. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस. ठीक है, अब दूसरे पार्ट में आप देख लीजिए, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट साइज नियरली रिमेन सेम, एक जैसा रहता है. इट इज बिकॉज इन दिस पार्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड सिग्मा नियरली बैलेंस ईच अदर. लगभग ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. इस वजह से ना तो साइज बढ़ेगा ना तो साइज कम होगा. सो ये लगभग एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां से लेके यहां तक साइज लगभग सेम है. At the end, what is happening? This point comes into existence. At the end of series, इन दोनों में हमारे पास D10 configuration है. D10 का मतलब we have got 5 electronic pairs, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अराइज हो गए. इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अराइज होने की वजह से साइज एक्सपेंशन होगा. At the end of series, what will happen there? Electron repulsions
ये डोमिनेंट है, प्लस सिग्मा, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट that will be greater than effective nuclear charge, इस वजह से साइज एट द एंड ऑफ सीरीज बढ़ेगा। ठीक है, तो सिंपल एक्सप्लेनेशन है, पहले साइज कम हो रहा है, पहले पार्ट में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और डोमिनेट कर रहा है स्क्रीनिंग को, दूसरे पार्ट में ये दोनों नियरली एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से साइज लगभग सेम है। और लास्ट पार्ट ऑफ द सीरीज में व्हाट्स हैपनिंग देयर, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस एंड सिग्मा, ये वाला फैक्टर डोमिनेट है, ये सिग्मा को रीइंफोर्स करेगा, बढ़ाएगा, इन दोनों का कंबाइंड फैक्टर ओवरकम करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट साइज विल इंक्रीज। दिस इज वेरिएशन ऑफ साइज इन अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हर किसी ट्रांजिशन सीरीज में बिल्कुल इसी टाइप की वेरिएशन है। ठीक है, सो बिफोर वी गो टू द another property, let me have quick recapitulation of all the three factors that we have discussed in the size. In comparison to S block, transition metals का size कम है क्योंकि effective nuclear charge ज़्यादा है। Second point, down the group normally size increases, लेकिन यहाँ पे difference ये है, second और third transition series का size same है। The reason behind that is a lengthenoid contraction. ठीक, and third important point, within a transition series the size variation is like this: first size decreases, then size nearly remains same, and at the end it increases. But the reason is behind that, we have explained that this is size variation of transition elements, atomic and ionic size of transition elements. ठीक है, now let me move to the next property. Next property of transition elements that we are going to discuss, it is density. छोटा सा पॉइंट है, इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। डेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है। सबसे पहला कंपैरिजन होगा बिटवीन एस और डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। जब आप ऐसे जाओगे, ऑब्वियस बात है, साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज जो भी हमने पढ़ा, एंड इन एडिशन टू दैट एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने का मतलब ऑब्वियसली कि एटॉमिक मास भी बढ़ेगा। एटॉमिक मास इज इंक्रीजिंग, साइज इज डिक्रीजिंग। उस वजह से क्या होगा, डेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, first point, density of transition elements, density of transition elements is greater than density of S block. S block elements. Reason is that size decreases and atomic mass that increases. Density mass per unit volume, जब mass बढ़ेगा size कम होगा, volume obviously कम होगा, as a result of that density is greater than S block elements. Point 2, down the group density के साथ क्या होगा, obvious सी बात है, down the group size भी बढ़ रहा है, नॉर्मल ट्रेंड में दिखा रहा हूँ, साइज भी बढ़ रहा है, एटॉमिक मास भी बढ़ रहा है, बट इंक्रीज इन एटॉमिक मास इज मोर डोमिनेंट और इंक्रीज इन एटॉमिक साइज और एटॉमिक वॉल्यूम। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। सो डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 3D सीरीज टू 5D सीरीज, यानी डेंसिटी ऑफ 3D series is greater than density of 4D series, greater than density of 5D series. ठीक, density, sorry उल्टा है, density of 5D greater than 4D greater than 3D series. Density down the group increases. Third point, within a transition series, what's happening to the density?
ठीक, अगर आप देखोगे अभी साइज हमने देखा कि पहले डिक्रीज हो रहा है फिर लगभग सेम रहता है, एट द एंड खाली एक्सपेंशन हो रहा है. सो एटॉमिक मास इज कंटिन्यूअसली इंक्रीज विद इन द ट्रांजिशन सीरीज, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और पहले वॉल्यूम भी कम हो रहा है और फिर लगभग वॉल्यूम सेम. इसका मतलब इन अ ट्रांजिशन सीरीज, विद इन अ पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज, इन जनरल डेंसिटी विल इंक्रीज. Density increases in a transition series. From, with increase in atomic number. यानी स्कैंडियम टू जिंक इन जनरल, मैं बाद में इसमें एक्सप्लेन कर लेता हूँ. स्कैंडियम टू जिंक साइज कम हो रहा इन जनरल, क्योंकि पहले डिक्रीज हो रहा फिर लगभग सेम, लेकिन उसमें भी थोड़ी डिक्रीजिंग ट्रेंड है, फिर एट द एंड साइज एक्सपेंशन हो रहा. आई विल एक्सप्लेन दैट. इन जनरल ये साइज कम होने की वजह से, एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से डेंसिटी इन अ ट्रांजिशन सीरीज विल इंक्रीज. ठीक है, तो पहले मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पे ही जाता हूँ. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सबसे कम डेंसिटी स्कैंडियम की है. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज in 3D series or first transition series, scandium is the element with minimum density, not only in first transition series but all transition metals, minimum density. और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आइडियली सबसे ज्यादा डेंसिटी तो होनी चाहिए थी जिंक की, बट रिमेंबर साइज एक्सपेंशन एट द एंड, साइज एक्सपेंशन होने की वजह से जिंक की डेंसिटी कम है. मैक्सिमम डेंसिटी इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज कॉपर. मैक्सिमम डेंसिटी पहली ट्रांजिशन सीरीज में कॉपर की है. होनी तो चाहिए थी जिंक की, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल आसान है. एट द एंड देयर इज साइज एक्सपेंशन, जिसकी वजह से जिंक की डेंसिटी पूरी ट्रांजिशन सीरीज में ज्यादा नहीं है. एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे पीरियोडिक टेबल में, नॉट ओनली इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, देयर आर टू एलिमेंट्स जिनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, एंड यू मे बी नोइंग दैट. ऑस्मियम and iridium. 22.61 grams per cubic centimeter, and iridium लगभग सेम 22.7 grams per cubic centimeter, 57 grams per cubic centimeter. This is the density of osmium and iridium. These are the two elements in overall periodic table and also in transition elements जिनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में. सो रिगार्डिंग डेंसिटी, ट्रांजिशन मेटल्स की डेंसिटी खाली एस ब्लॉक से ही ज्यादा नहीं है, दे हैव गॉट डेंसिटी मोर देन इवन पी ब्लॉक. सेकंड पॉइंट, डेंसिटी इंक्रीजेस एज यू मूव डाउन द ग्रुप 3D to 4D, 4D to 5 because of increase in the molar mass. Third point is that density increases generally in a transition series, लेकिन at the end size expansion की वजह से थोड़ा density में कम फर्क आ जाता है, जिस वजह से हमने उसको explain किया in the first transition series. First transition series में maximum density तो होनी चाहिए थी जिंक की, लेकिन है copper because of size expansion at the end. तो scandium with minimum density, copper with maximum density. In overall periodic table, maximum density osmium and minimum density is iridium. This was all about density. So आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था, that was first name of all the transition elements belonging to 3D, 4D and 5D series. Then we got general characteristics of transition elements. जिनमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया metallic bonding, because metallic bonding is very important. That's going to affect the melting and boiling points and enthalpy of atomization. तो melting boiling points हमने डिस्कस किया, enthalpy of atomization हमने डिस्कस किया. We have discussed size of transition metals with reference to 3D series, and जो अगला लास्ट पॉइंट आज हमने डिस्कस किया, that was density of transition elements. This was all about for today. Inshallah we'll meet tomorrow in the next lecture. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.
2 साल हो